Today's chapter is quadratic equations. So no matter you are in CBSE, ICSE, whichever board, you will have this particular topic, quadratic equation, one of the very fundamental topic. And the things which we are going to discuss today applies to everyone. And on the basis of this particular video, I'm going to give you homework which you have to try. Right, so please watch this video carefully rather than thinking that this is from our book or not our book. Okay, just keep you can say open mind and watch this video because it is definitely going to help you. Correct? Let's start. Quadratic equations. Okay, so the first kind of question, the basic kind of question which we are going to do is identify whether the following equations are quadratic or not quadratic. Okay, so see, let me talk about quadratic equation before we take this topic further. First thing is to identify that what is the standard form of quadratic equation. If we are able to identify the standard form of quadratic equation, then we can work on our given problem and identify which of the given equations are in standard form or match with the standard form. So the standard form of quadratic equation is uh, let me write here, standard form of quadratic equations is ax square plus bx plus c is equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? A is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. What is b? B is the coefficient of x. And what is c? C is the constant term. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Okay, so this is, and that the whole thing becomes equal to 0, and that's what you call standard form of quadratic equation. Now if you look at all the problems which are given here, none of them look like they represent this standard form. But what you have to do is you have to bring them in their standard form. They are not in their standard form right now, but you have to bring them in their standard form. So let's try a few of the questions. Right, let's try the first one. X plus 1 the whole square is equal to 2 bracket x minus 3. So let's expand this. X square plus 2x plus 1 is equal to 2x minus 6, or x square plus 2x minus 2x. See, this 2x will come to the left hand side, will become minus 2x plus 1 plus 6 is equal to 0. So x square plus 2x and minus 2x will cut, plus 7 is equal to 0. Or you can say that x square plus 0x plus 7 is equal to 0. Why 0x? Because there is no term involving x. So we can write 0x. So here the coefficient of x square is 1, coefficient of x is 0, and constant term is 7. And the whole equation equals to 0. So this is the standard form of quadratic equation. Now this is a quadratic equation. Definitely it is quadratic equation. When a given equation becomes quadratic. See, in quadratic equation, the power of x should be, the highest power of x should be 2. Exactly 2. Neither more than 2 nor less than 2. Exactly 2. Okay, so x square plus 7 is equal to 0 is very well quadratic equation because in that the power of x is 2. Okay, there is no term involving x, but that does not matter. That is not the condition which is required for an equation to be quadratic. So that's not a problem. Okay, let's take one more problem. Let's take sixth one. Looks interesting and different. X square plus 3x
plus 1 is equal to x minus 2 the whole square. X square plus 3x plus 1 is equal to x square minus 4x, x square minus 4x plus 4. Okay, so this x square and this x square will cut straight away. This 4x will come this side and become plus 4x plus 3x plus 1 minus 4 is equal to 0. So this will become 7x minus 3 is equal to 0. Now this equation, if you see, the power of x is 1. So this is not quadratic. This earlier one was quadratic. It is quadratic, okay? But this one is not quadratic. Okay, not quadratic. तो ऐसा दिखता है कि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, बट क्वाड्रेटिक है नहीं है. इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, whether a given equation is quadratic or not, you cannot say directly at the equation by just by looking at it. You have to simplify it, bring it in its standard form, which I have told you over here 100 times कि भाई ये standard form है. उसको अपने standard form में लेके आओ and then determine whether it is quadratic or not. Eighth one, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 the whole cube. Algebraic identity लगा के इसको expand करना पड़ेगा. So x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 the whole cube. a minus b the whole cube की identity लगेगी यहाँ पे. a cube minus 2ab नहीं 2ab नहीं 3ab. a minus b the whole cube क्या था? a minus b the whole cube था a cube minus b cube minus 3ab ब्रैकेट a minus b. सही है. a cube x cube minus 2 cube क्या हो जाएगा? 8 minus 3 into x into 2. ठीक है, इसको आगे एक्सपांड करते हैं. minus 3 into x into 2 bracket a minus 3ab bracket a minus b, that is x minus 2. So x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 6x bracket x minus 2. देखो पहले ये x cube को काट दो. So क्या बचेगा? minus 4x square minus x plus 1 is equal to minus 8 minus 6x square plus 12. ठीक है. अब ये जो तीन टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. सो यू विल गेट 6x square minus 4x square minus x plus 1 plus 8 minus x plus 1 plus 8 minus 12. Sorry, minus 12 is equal to 0. ये प्लस 12 ये साइड आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 8 ये साइड आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 1 इधर ही रहेगा, माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर. सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9. 9 माइनस 9 माइनस 12 हो जाएगा minus 3 is equal to 0, right? So this is quadratic. So although the equation did not look
quadratic at once, but on simplification it became quadratic. सो हमेशा याद रखना कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये जज करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है. सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 which was quadratic, the sub question 1. Then we did sub question number 6 which was not quadratic, and sub question 8 which was quadratic. Let's check the answer. X square plus 7 quadratic है. Question number 6, 7x minus 3 not a quadratic equation. Let's check. Yes, it is correct. And eighth one, 2x square minus 13x plus 9 is equal to 0. 2x square minus 13x plus 9. Hey, is it eighth one? 2x square minus 13x plus 9. क्वाड्रेटिक तो है लेकिन हमारा इक्वेशन गलत आया, तो शायद कुछ मिस्टेक किया है. लेट्स चेक. 6x स्क्वायर यहाँ पे आया, 2x स्क्वायर ये तो सही है. ओ यस, माइनस 6x माइनस 2 प्लस 12x होगा. इसीलिए गलती हो गई. ठीक है, फिर से करते हैं. कुछ सिली मिस्टेक हुई है, उसको रेक्टिफाई करते हैं. सो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस 12x इधर आ जाएगा, माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8. अब सही है. सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. Okay, 2x square minus 13x plus 9 is equal to 0, and it is a quadratic equation. Chalo, so that was the first part. Second part में जाते हैं. In the second part of this particular topic, quadratic equation, you have to find the roots of the following quadratic equation by factorization. Okay, now you must be wondering कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए तुम्हारे लिए, तो बाकी के मैंने किए फर्स्ट, सिक्स्थ और एट्थ, तो बाकी के क्वेश्चंस हमें करने हैं या नहीं करने? डेफिनेटली करना है तुम्हें. तो ये तुम्हारा क्लास वर्क जैसा कुछ है. क्लास वर्क मतलब वीडियो के साथ साथ तुम्हें सॉल्व करना है. ठीक है, तो बाकी के 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी बचे हैं, यू विल सॉल्व इट विद द वीडियो एंड यू विल चेक योर आंसर हियर बाय पॉजिंग द वीडियो. तो वीडियो पॉज करके बाकी के आंसर प्लीज चेक कर लो. ठीक है, और यहाँ से भी. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करना है. हर एक क्वेश्चन में मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस एंड द रेस्ट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड बाय यू. ठीक है, चलो. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. Now here the first word which you come across is roots. What do you mean by roots? So remember, whenever you solve a quadratic equation, ax square plus bx plus c, you will get two values of x. x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2. These two values are known as roots. These are the roots. Roots मतलब the values of x of this particular quadratic equation. तो किसी भी quadratic equation को solve करने से x की जो 2 values मिलती है उसको हम लोग roots बोलते हैं. quadratic equation के क्या है? ये roots. ठीक है, so let's solve and check. अच्छा, अभी इसको कैसे solve करना है तो वो भी ये लोग ने बताया है कि you have to solve it with the help of factorization. factorization मतलब यहाँ पे कौन सा factorization करेंगे हम लोग? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स डू द सेकेंड वन फर्स्ट. सेकेंड वन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले यू विल मल्टीप्लाई 2 विथ माइनस 6. सी हाउ टू राइट. आई एम गोइंग टू शो यू. 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 कितना होता है? माइनस 12. ठीक है, माइनस 12 के हम 2 फैक्टर निकालेंगे.
will take out two factors of minus 12 such that the sum or difference of these two factors of minus 12 will give me the coefficient of the middle term, coefficient of the term with the degree of variable as 1. तो यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है? ये वाली टर्म। ये वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है +1। मतलब -12 के दो फैक्टर का सम या डिफरेंस +1 होना चाहिए। क्लासिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो -12, 6 2 ज़ा 12 जिससे +1 नहीं आता है। 6 और 2 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, +1 नहीं आता है। और किससे आता है? 12 के और कोई फैक्टर, 3 4 ज़ा 12, यस, इससे हमें +1 मिल सकता है। तो +1 लाने के लिए यहाँ पे 3 के आगे माइनस की साइन लगाएंगे और बड़े नंबर 4 के आगे प्लस की साइन लगाएंगे। सो +4 इंटू -3 -12 भी होता है एंड +4 -3 +1 भी होता है। सो लेट्स स्प्लिट इट। 2x² -3x +4x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी एक इज इक्वल टू है, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, दो इज इक्वल टू इक्वेशन में नहीं डालना। अब हम कॉमन निकालेंगे। सो इन दीज टू व्हाट विल बी कॉमन? x विल बी कॉमन। व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड? 2x -3। in these two what will be common? +2 will be common. What will be left inside? 2x -3। हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये वाला जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो एग्जैक्टली डिट्टो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस माइनस की साइन का डिफरेंस है या फिर कोई और डिफरेंस है नंबर का, तो मतलब तुम्हारा जो स्प्लिटिंग है उसमें गलती है। तो स्प्लिटिंग करते टाइम साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? 2x -3 विल कम आउट कॉमन एंड x + 2 विल बी लेफ्ट इनसाइड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स होता, तुम्हारे 9th क्लास का चैप्टर, फैक्टराइजेशन एक्सपांशन पॉलिनोमियल्स या जो भी बोलो तुम उसको, तो उसमें यहीं पे छोड़ देते हैं हम उसको, क्योंकि ये तो फैक्टराइज हो गया है। बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ फैक्टराइज नहीं करना, वी हैव टू फाइंड द रूट्स आल्सो। सो हाउ टू फाइंड द रूट्स? सो व्हाट विल डू इज, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, दीज टू नंबर्स इज 0। ये दोनों टर्म्स या दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। सो देयरफॉर 2x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x -3 0 है या फिर x + 2 0 है, एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब 2x की वैल्यू 3 है या फिर x की वैल्यू -2 है, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2। ये क्या है? व्हाट आर these two values of x are nothing but the roots of the given quadratic equation। इसको हाईलाइट कर लो, इसके तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड फाइंड द रूट्स। और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स टेक द रूट 1। रूट वाले आगे भी हम करने वाले हैं, बट अच्छा, फॉर द सेक ऑफ इट जस्ट लेट्स टेक इट। ठीक है, एक वाला रूट वाला करते हैं, फिर एक ये फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। तो वी डिड द सेकेंड वन, वी आर गोइंग टू डू द थर्ड एंड फोर्थ वन। फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन यू हैव टू ट्राई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करना मत भूलना। ठीक है, सो लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व द रूट वन, राइट, थर्ड वन। √2x² + 7x + 5√2 is equal to 0। √2x² + 7x + 5√2 is equal to 0। अब देखो,
अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप जो हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में भी किया था, हमने क्या किया था, वी मल्टीप्लाइड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द कांस्टेंट टर्म विथ इट्स साइन। मतलब 2 को -6 से मल्टीप्लाई करके -12 मिला, फिर उसको स्प्लिट किया, फैक्टर्स निकाले उसके। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई √2 with 5 √2 and find the product. So √2 multiplied by 5 √2, दोनों प्लस है, ठीक है। क्या होगा ये प्रोडक्ट, दिस विल बी √2 इंटू √2 2, 2 5 ज़ा 10, और 10 के दो फैक्टर निकालने सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज 7, वेरी इजी, 5 2 ज़ा। So √2x square, see splitting is not a big issue here, factorizing will be challenging, so please pay attention to √2x square plus 5x plus 2x plus 5 √2 is equal to 0। पहले तो स्प्लिट करके लिख दिया हमने, अब पहले दो और लास्ट के दो जो टर्म्स है उसको अंडरलाइन कर लिया क्योंकि हमें उनमें से कुछ कॉमन लेना है। So what is common between √2x square and 5x? Just x is common. So what will be left inside? √2x plus 5. What is common between 2x and 5 √2? तुम बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे 2x और 5 √2 में √2 कॉमन है, और अगर मैं √2 को बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5। तुम पूछोगे कैसे √2 आपने निकाला कॉमन, तो √2 के सॉरी 2 के अगर दो फैक्टर में निकालूं तो वो हो जाएंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो यहाँ पे 2 था, उसमें से एक फैक्टर √2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या फैक्टर बचेगा, √2। यहाँ पे 5 √2 में से √2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 5। सो दिस विल बी √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से मैंने गलती की, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू साइन नहीं डालनी कभी भी, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी therefore √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, एंड therefore √2x प्लस 5, सॉरी फिर से वही लिख रहा हूँ, √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -√2। So x is equal to -5 by √2 or x is equal to -√2. These two are the roots of a given quadratic equations. ये हमारे given quadratic equation के क्या है, रूट्स हैं। तो स्क्वायर रूट वाला भी क्वेश्चन आएगा तो उसको फैक्टराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड अगर सही से लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, वी आर गोइंग टू ट्राई वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम फैक्टराइजेशन। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यस। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। अब बहुत बच्चों को ये देख के ना बहुत टेंशन आता है कि यार ये तो फ्रैक्शन आ गया, अब क्या करेंगे। देखो बहुत इजी है, सबसे पहले मैं तो बोलूँगा कि एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेंगे इसमें, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 1 एंड 8? 8। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 द होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 8 है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले मैंने एलसीएम लिया, फिर वो डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब 16 के दो फैक्टर ढूंढ लो।
मुझे +16 चाहिए यहाँ पे, और उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए जिसका सम या डिफरेंस -8 मिले। तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 4 4 ज़ा 16, और -4 इंटू -4 +16, -4 -4 -8 मिलेगा। सो 16x² -4x -4x +1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 4x, और अंदर क्या बचेगा? 4x -1। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? -1। अंदर क्या बचेगा? 4x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या आएगा? 4x -1, और एक ब्रैकेट में 4x -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x -1 इज इक्वल टू 0, और 4x -1 इज इक्वल टू 0। स्टेप्स अच्छे से समझ लो। इफ़ यू डू डायरेक्टली, इफ़ यू डोंट फॉलो स्टेप्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। सो 4x इज इक्वल टू 1, और 4x इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, और x इज इक्वल टू 1/4। दोनों सेम इक्वल रूट्स आए। ठीक है, इक्वल रूट्स है, x की दोनों वैल्यू सेम है 1/4 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कितने क्वेश्चन तुम्हें कर रहे हैं? मैंने 3 क्वेश्चन किए जो तुम्हें समझाए मैंने स्टेप्स के साथ। तुम्हें करने 2 क्वेश्चंस। कौन से? फर्स्ट और फिफ्थ। वीडियो पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, एंड देन you can go ahead. I will show you the solution and check the solution, right? Please pause the video and do it. Okay, so the solutions are in front of you. हम अपने solution भी check करेंगे। मेरा था second वाला 3/2 and -2. Let's check. -2 and 3/2. Perfect. First वाले का आप लोग check कर लो। -5/√2 and -√2, ये भी करेक्ट है। 1/4 and 1/4, ये भी करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ हो गया, फिफ्थ आपको चेक करना है। करेक्ट। चलो, दिस पेज डजंट सीम टू बी लोडिंग, जस्ट मोमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखो, ये एक टॉपिक है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या नाम है टॉपिक का? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये टॉपिक बहुत सारे स्कूलों के सिलेबस से इसको रिमूव किया है, लेकिन हम फिर भी ये टॉपिक पढ़ेंगे बिकॉज तुम्हें हायर स्टैंडर्ड्स में ये टॉपिक वैसे भी पढ़ना है। ठीक है, सो तुम्हारी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, आई डोंट नो वेदर 2020 के सिलेबस से इसको निकाला है या रखा है। अभी तक तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, वी विल कम टू नो। बट छोटा सा टॉपिक है, क्यूट सा टॉपिक है। अगर अभी इसको पढ़ लेते हैं तो इजी हो जाए। ठीक है, सो लेट्स डू दिस टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो लेट्स ट्राई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा है, ये बहुत अच्छा मेथड है। आई डोंट नो क्यों सीबीएसई ने अपने सिलेबस से इसको निकालने का डिसीजन लिया है। आईसीएसई में आई एम श्योर ये है, नहीं भी होगा तो इतना अच्छा मेथड है, इसको सीखना बहुत अच्छा है, ज़रूरी। ठीक है, तुम सोच रहे होगे कि मैं ज़बरदस्ती कोई मेथड सिखा रहा हूँ तुम्हें, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, let's take the first example. 2x² - 7x + 3 is equal to 0। ठीक है, अब सबसे पहले अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें ये जो x² है ना, इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। x² का कोएफिशिएंट अभी 2 है, उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे पता है? पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग
थ्रू आउट बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, 2x square minus 7x plus 3 the whole divided by 2 is equal to 0. What will get? 2x square divided by 2 minus 7x divided by 2 plus 3 divided by 2, है कि नहीं? तुम सोचोगे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? अगर मैं करूंगा भी तो 0 डिवाइडेड बाई 2 मुझे वापस 0 ही देगा. एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0. ठीक है, ये 2 कट जाएगा. आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वेयर हियर. ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा -7/2x, फिर यहाँ पे आएगा +3/2. फर्स्ट स्टेप समझा? अगर तुम्हारे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ. कैसे बनाओ? जो भी कोएफिशिएंट है उसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो. कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो. 3 है तो 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो. फिर तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा. अब क्या करना है? अब तुम्हें ये इक्वेशन में से जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. तो ये कैसा दिखेगा इक्वेशन? एक्स स्क्वेयर -7x/2 इज इक्वल टू -3/2. क्या किया मैंने? 3/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. अब क्या करना है? नाउ you have to find out the coefficient of x. What is the coefficient of x? Coefficient of x here is -7/2. So what you have to do is you have to multiply the coefficient of x by 2 and take a square of it and add it to both the sides. समझ में आया कुछ? मैं बताता हूं. मैंने क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ x ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर ले लो. क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा -14/2. -14/2 करेक्ट. सो ये -14/2 का स्क्वायर क्या होगा? -14/2. -14 का स्क्वायर कितना होगा? 196. और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. क्या करना है, समझ में आया तुमको? देखो, तुम एक चीज और कर सकते हो. मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा इलेबरेट करके बताया. मैंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पहले पता लगाओ क्या है वो. -7/2. इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो. कर दिया मल्टीप्लाई. ठीक है, एक्चुअली यहीं पे ये 2 कट हो जाता है. कट कर दो कट, क्योंकि 196/4 करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है. ठीक है, कट कर दो उसको और फिर उसका स्क्वायर ले लो. तो कौन सा नंबर बचा है? -7. -7 का स्क्वायर कितना है? 49. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको स्क्वायर कर देना है. और ये जो तुम्हें नंबर आएगा इसको दोनों साइड में ऐड करना है. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, थर्ड टर्म ढूंढने का स्टेप. क्या बोलते हैं इसको? द स्टेप फॉर फाइंडिंग थर्ड टर्म. ठीक है, अब क्या करेंगे पता है? मैं यहां पे लिखता हूं एडिंग 49 टू बोथ साइड्स. ठीक है, क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वेयर -7x/2 प्लस 49 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 49. ठीक है, शायद मैंने कोई गलती की है यहाँ पर. हम्म
आई थिंक इसको डिवाइड बाय 2 करके स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके नहीं। ठीक है, मेरी गलती है, चलो सुधारते हैं इसको वापस। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3/2 मिला। एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, यू हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -7/2, और उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। -7/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -7/4। फिर इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करना है, -7/4 को स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ -7/4, ठीक है, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 49/16। कितना हो जाएगा, 49/16। और तुम्हें ये 49/16 को ऐड करना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एडिंग 49/16 ऑन बोथ साइड्स। किसके बोथ साइड्स में, देखो एक तो ये हमारा this particular thing which you are seeing is your extra step। ठीक है, तो कीप अ नोट ऑफ दिस स्टेप। सो अभी क्या करना है हमें, हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाया, राइट। मैंने ये जो 2 है उसको मैंने हटाया। कैसे हटाया, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। फिर मैंने ये जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लिया, उसको 2 से डिवाइड किया और फिर उसको स्क्वायर कर दिया, और फिर जो नंबर मिला दैट इज द थर्ड टर्म। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। उसको दोनों साइड पे ऐड करना है मुझे। सो कैसा दिखेगा, देखो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -7x/2 प्लस 49/16 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 49/16। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। किसको पता है, खास करके मेरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ मुझे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मुझे कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे कैन आई राइट इट एज एक्स द होल स्क्वायर -7x/2 प्लस 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16 1 जा। सो ये हो जाएगा -24 प्लस 49/16। सही है। अब बिकॉज दिस इज अ perfect square x square and this is a perfect square, so basically ये जो ट्राइनोमियल दिख रहा है तुम्हें लेफ्ट साइड में, that could be represented as a square of a binomial। मतलब ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा, प्रूव करके मतलब सॉल्व करके बताऊंगा कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस लिटिल बिट टू द, या नाउ बेटर। ठीक है, अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस कैन बी रिटर्न एज x² -2 इंटू a इंटू b प्लस b²। क्या किया मैंने, ये a है, ठीक है, तो 2ab, ये b है, तो 2ab को अगर मैं साथ में लिखता हूँ, उसको मैं अगर सॉल्व भी करता हूँ तो मुझे 7x/2 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -24 प्लस 49 25/60। ठीक है, अब मैं इसको
एक साथ लिखूंगा, मतलब फैक्टराइज करके, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, सो आई गेट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। क्यों प्लस माइनस, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी हैव टू पुट प्लस माइनस, एंड देयरफॉर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस 7/4 वो साइड चला जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4, और x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5/4 प्लस 7/4, है कि नहीं। एक बार प्लस 5/4, एक बार माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू 12/4 और x इज इक्वल टू 2/4। सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ये तुम्हारे x की दो वैल्यूज हैं। तुम सोचोगे यार ये अच्छा हुआ इसको निकाल दिया सिलेबस से, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज अ क्लासिक मेथड। ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे इसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। सो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, सूनर और लेटर ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, इसलिए हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो तुम सोचोगे मैं कौन सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्या मैं थर्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ, नहीं मैं नहीं लेने वाला, मैं सेकंड क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्या आंसर आया उसका, एक्स की वैल्यूज 3 एंड 1/2, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 3 एंड 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड वन, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x² plus x minus 4 is equal to 0. This is your question. ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, मैं यहां पे लिखता हूं, स्टेप 1, गेट rid of coefficient of x square। कैसे गेट rid करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, सो वी विल डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे। So 2x² plus x minus 4 the whole divided by 2 is equal to 0 divided by 2। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, x² plus x/2 minus 4/2 is equal to 0। That is x² plus x/2 minus 2 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी to shift the constant term to the right hand side. So this will become x² plus x/2 is equal to 2। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 मैंने लिखा था, स्टेप 2 लिखा नहीं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, स्टेप 2, शिफ्ट द कांस्टेंट टू द
right hand side, shift the constant to the right hand side. ठीक है, ये स्टेप 2 था, स्टेप 2 हो गया, अभी स्टेप 3, डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x by 2, square it and add it to both the sides. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है 1/2, ठीक है, तो 1/2 को मुझे लेना है, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो 1/2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1/4, और फिर इसको स्क्वायर करना है, तो कितना मिलेगा मुझे 1/16, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x को लिया, डिवाइड बाई 2 किया, उसको स्क्वायर किया, और ये जो हमें नंबर मिला है इसको दोनों साइड हमें ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस x बाई 2 plus 1/16 is equal to 2 plus 1/16. Perfect. Now see important stuff. Reducing this to in the form of binomial of a square, x by 2 plus 1/4 the whole square is equal to okay 16 2s are 32 plus 1/16. So this will become x the whole square plus 2 into x into 1/4 plus 1/4 the whole square, 33/16, राइट। 1/16 को दोनों साइड ऐड किया हमने, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच विल बी a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। ये 33/16 थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं, -2 जाके +2 हो जाएगा, हाँ सही तो है, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूटिंग both sides. So what will get, x plus 1/4 is equal to square root of 33/16, ठीक है। So therefore x is equal to, एक्चुअली यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 16 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, प्लस माइनस √33/4 minus 1/4, and therefore x is equal to √33/4 minus 1/4 or √33/4 प्लस, यहाँ भी गलती की मैंने, क्योंकि ये प्लस माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस लिया है तो यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, -√33/4 -1/4, -1/4. So therefore x is equal to √33 minus 1 the whole upon 4 or minus √33 minus 1 the whole upon 4. Let's check if our answer is correct. Interesting, huh? Let's check. The second question. Yes, absolutely correct. बिल्कुल सही आया सेकंड का आंसर, ठीक है। सो ऐसे वियर्ड आंसर आ सकते हैं, प्लीज़ डरना मत, मैंने जैसे करता गया मैं, तुम्हें भी वैसे करते जाना है और तुम्हारा आंसर आएगा सही, ठीक है। सो आई अगेन शो यू स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, and then this one and then this one, so this completes the
कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कंप्लीट किया हमने. यू हैव टू ट्राई. प्लीज डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज के ये तो सर सिलेबस में नहीं, हम नहीं करेंगे. नहीं, ये सब नहीं करना मेरे साथ. प्लीज ट्राई द थर्ड वन एंड फोर्थ वन yourself right now as a classwork and check the answer. Check the answer. Okay, so pause the video, try right now and show you the answer. You check it. Done. देख लो. Third and fourth. Third and fourth. So in fourth question, there is no real value of x which can satisfy the given quadratic equation. मतलब इसको तुम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है. यहाँ पे लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर है और राइट साइड में नेगेटिव नंबर है. किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं होगी. देर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो अब आगे का टॉपिक इसी के बारे में. आगे का जो टॉपिक है उस पर जाने से पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस यार. वो लोग इससे पहले कि कोई क्वेश्चन फेंके हमारे सामने, हम लोग को रेडी होना चाहिए. ओके, सो तुमने देखा कि तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये दोनों से सॉल्व नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज जो रूट के अंदर नंबर आता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते. सो देर इज अ थर्ड मेथड. there is this third method of solving quadratic equation that is known as quadratic formula. ठीक है. मेथड वन क्या था? मेथड वन था splitting the middle term. मेथड वन था splitting the middle term. मेथड टू क्या था? मेथड टू था completing the square. मेथड थ्री for solving quadratic equation is quadratic formula. हमें अब इसकी बात करनी है. पूरा अभी बाकी का चैप्टर इसके ऊपर रहेगा फोकस्ड. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तुम बोलोगे ये तो बहुत अजीबो गरीब फॉर्मूला है. नहीं है, ये अजीब नहीं है. ये फॉर्मूला अजीब इसलिए नहीं है बिकॉज अगर तुमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश की तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग? थ्रू आउट ए से डिवाइड कर देते हैं. करें? चलो. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको थ्रू आउट यहाँ पे a से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी a से डिवाइड कर दिया. तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम क्या करते हैं? ये कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. उसके बाद क्या करते हैं? ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देते हैं. तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा b बाई 2a. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और 2 से डिवाइड किया, b बाई 2a मिला और उसको स्क्वायर कर दिया. सो बी स्क्वायर बाय 4a.
और यहाँ पे भी हमें मिलेगा माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या हम वैसे ही करते थे? नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो इट्स टेकिंग लिटिल टाइम क्योंकि मैं पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ठीक है, सो इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, सो बी पेशेंट विथ मी। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 कट जाएगा एंड विल गेट बी एक्स बाई ए विच वॉज आर ओरिजिनल मिडिल टर्म प्लस बी बाय 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, -4c प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में विल गेट x प्लस बी बाय 2a द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4c। सही है या कुछ गड़बड़ है? c बाय ए गया वो साइड और फिर b बाय 2a को स्क्वायर किया, b स्क्वायर बाय 4a, b बाय 2a, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी 4a स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा उसका एलसीएम। यहाँ पे मतलब मुझे 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 4ac। या दैट्स व्हाट, सो दिस विल बी 4ac प्लस b स्क्वायर। सो b स्क्वायर है माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a अपॉन 4a। ठीक है, सो अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो विल गेट, लेट्स राइट इट टू द, या ओवर हियर, सो स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड विल गेट x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर आएगा। यस, दैट्स व्हाट द एलसीएम वॉज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, व्हाट विल डू इज विल टेक दिस b बाई 2a टू द अदर साइड, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का अब तुम्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लग रहा होगा कि हाँ उसी मेथड से तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकला है। दैट्स वाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम्हें इसका रूट बताता है कि एग्जैक्टली ये आया कहाँ से। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम सोचोगे ये प्लस माइनस का क्या जरूरत है, प्लस माइनस का जरूरत मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्स की दो वैल्यूज है, एक्स की जो पहली वैल्यू है दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x की जो दूसरी वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
करेक्ट, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की दो वैल्यूज है। अब तुम बोलोगे सर ये ए बी सी है क्या? तो ये ए बी सी, टेकिंग द स्टोरी टू द रूट, टू द ओरिजिनल beginning where we started, a b or c are nothing but the coefficient of x square, coefficient of x and coefficient and the constant term। यही तीनों वैल्यू अगर तुम्हें पता है, मतलब अगर तुम्हारे पास तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, so you can easily use quadratic formula and find the value of x within no matter of time. You will get the value of x, but there is a problem. Let's talk about the problem. So the problem is solvability of a quadratic equations। solvability of a quadratic equation इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली बात, नॉट ऑल, ये नोट कर लेना, सब कुछ नोट करना जो जो मैं लिख रहा हूं। नॉट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सॉल्वेबल। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर तुम मुझसे मांगो, तुम बोलोगे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल रहते हैं। ये देखो तुम्हारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने आगे सॉल्व करने की कोशिश की तो आगे सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकते? ये हमें सीखना है। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which are not solvable will have no real roots। उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब x की कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। एंड टू फाइंड दिस आउट, this मतलब whether a given quadratic equation is solvable or not, to find this out we must find the value of discriminant, क्रिमिनल जैसा वर्ड है नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड कहां से आया पता है? ये लोग बोल रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं है, ये पता अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट वर्ड कहां से आया वो पहले समझो। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आया, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। आर यू अवेयर ऑफ द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव, है ना, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। तो यही हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है यहाँ पे। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिमिनेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथमेटिकल डिस्क्रिमिनेशन लीगल है, लीगली कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ the nature of roots you have to discriminate whether the given quadratic equation is solvable or not। तो हमें ये डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? सबसे पहले इसका सिंबल देखो, डिस्क्रिमिनेंट d, इसका सिंबल है d, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये उसका फॉर्मूला है। अब तुम वापस पूछोगे सर ये ए बी सी क्या है, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो ए बी सी है ये तुम्हारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। तो इसी से अगर ये पता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म हमें पता है, तो यही वैल्यू लेके अगर हम
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्सटीट्यूट करें तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट मिल गया तो डिस्क्रिमिनेंट को देख के ही हमें पता चल जाएगा कि वेदर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्वेबल और नॉट। यही हमें करना है, ठीक है। सो देयर कुड बी 3 केसेस, डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यू हो सकती है। केस 1, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है डिस्क्रिमिनेंट। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, then the given equation, quadratic equation of course, will have real and distinct roots। मतलब क्या होगा कि तुम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। चाहे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, फैक्टराइजेशन से होता है तो उससे करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, कैसे भी करो तुम सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें एक्स की वैल्यू मिलेगी और वो रियल होगी और वो डिस्टिंक्ट भी होगी। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक होगी, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग होगी, यूनिक होगी, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो। सेकेंड केस क्या बनता है? सेकेंड केस बनता है इफ डी इज इक्वल टू 0, देन अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो the given equation will have real and equal roots। the given equation will have real and equal roots। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब भी उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस केस में जो तुम्हारे रूट्स होंगे, जो एक्स की वैल्यूज होगी वो इक्वल होगी। रियल नंबर तो होगी लेकिन इक्वल होगी, एक्स की दोनों वैल्यू इक्वल आएगी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो। और इसका एक थर्ड केस बनता है, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0। तब क्या होगा? देन द गिवन इक्वेशन will have no real roots, मतलब x की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। दैट इज it will be, the equation will be, it will be unsolvable। ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने आए, अभी तक जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे वो सब सॉल्वेबल थे, सिर्फ एक को छोड़ के जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का लास्ट वाला था। अगर उसमें हमने ये डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू को ढूंढ के पहले ही पता लगा लिया होता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल है कि नहीं, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ती। तो आगे से ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, और अब आगे पूरे एग्जाम तक जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, बोलता है फैक्टराइज, तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें गड़बड़ दिखे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ के ही आगे बढ़ना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पे क्यों सॉल्वेबल नहीं है। चलो मुझे बताओ व्हाट इज ए। ए क्या है? यहां पे 2 है, राइट? ए इज 2। बी क्या है? बी इज 1 प्लस 1 है, ठीक है। सी क्या है? सी इज 4। ए बी सी पता है, 2 1 और 4। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 1 माइनस 32 कितना आता है? माइनस 31। क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 आया, मतलब नो रियल रूट्स। समझ में आया तुमको? तो डिस्क्रिमिनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल होगा कि नहीं। अच्छा, तुम बोलोगे सर ये इतना डबल मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेहनत नहीं है भाई। अगर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही डिस्क्रिमिनेंट छुपा हुआ है। ये रहा, देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, लुक हियर, x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पहले ही ढूंढ लूं तो ये भी मेहनत बच जाएगी। समझ में आया? चलो अब एक सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और you have also you have understood that how this quadratic formula has been derived। इसका डेरिवेशन का मेथड भी मैंने तुम्हें बताया। also you have understood कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल है और डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है और क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब क्या होगी तो हम लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चलो। सो क्या है ये इक्वेशन, देख क्या है क्वेश्चन, ये देखो। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबाउ बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया था ना। चलो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर से इसको सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए क्या है, व्हाट इज ए? 1। ए सॉरी सॉरी सॉरी, ए इज 2 भाई, क्या कर रहा हूं मैं। ए इज इक्वल टू 2। बी क्या है? माइनस 7। सी क्या है? 3। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 49 माइनस 8 3 ज़ा 24, कितना आया? 25। सो सिंस d is greater than 0, the given equation will have real and distinct roots। ठीक है, चलो d की वैल्यू तो पता चल गई मुझे। अब x की वैल्यू डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ढूंढते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यूज डालते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 और 3 है ए बी सी, माइनस ऑफ माइनस 7 ये होगा अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 2a। ए क्या है? 2। सो 2 2 ज़ा 4, और x इज इक्वल टू सेम चीज माइनस ऑफ माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 4। 7 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 5 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, दैट इज 12 बाई 4 और 2 बाई 4, दैट इज 3 और 1 बाई 2। यही आया था ना हमें आंसर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, आंसर सेम आएगा। अगर मेथड सही होगी, टेक्निक सही यूज किया, तो आंसर सेम आएगा। इट प्रूव्स कि क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला भी तुम्हें आंसर दे सकता है। अब वो सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वो लोग ने सॉल्व किया है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये थोड़े चैलेंजिंग इक्वेशंस है क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं एक इक्वेशन करूंगा तुम्हारे लिए और एक तुम्हें करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट वाला करूंगा, सेकंड वाला तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन x इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज a is 1। Can you tell me what is b? Minus 3। Can you tell me what is c? Minus 1। a 1 है, b minus 3 है और c minus 1 है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड द रूट्स, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन तो होगा ही नहीं इसका। यू विल कम अक्रॉस सो मेनी क्वेश्चंस जहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं, एंड यू व्हाट यू विल डू इज यू विल solve it with the help of quadratic formula, ठीक है। सो सबसे पहले आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d। क्या है वो, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 विच इज 9 माइनस माइनस 4 which is 9 plus 4 which is 13। क्या है डिस्क्रिमिनेंट, 13, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है, therefore discriminant is greater than 0। so roots of the given equation will be distinct and real। ये हमें पता चल गया। अभी रूट्स ढूंढने हैं, तो क्या है रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है, माइनस b दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d दैट इज अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2a। so what is 2a, 2 into 1, okay, so this will be 3 plus minus root 13 by 2, therefore x is equal to 3 plus root 13 by 2 or x is equal to 3 minus root 13 by 2, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला। चलो चेक करते हैं सही है या नहीं। फर्स्ट वाला 3 प्लस रूट 13 बाई 2, 3 माइनस रूट 13 बाई 2, यस इट इज करेक्ट। तो लोग ने प्लस माइनस नहीं किया है डायरेक्टली, सॉरी प्लस और माइनस को सेपरेट नहीं किया है, डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। द सेकेंड वन हैज टू बी सॉल्व्ड बाय यू, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। अच्छा, फॉर some students like ICSE students, you also have to express this final answer in decimals। ICSE के बच्चों को ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जिसको फाइनल आंसर डेसिमल में लेके जाना है, तो वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, 13 रूट 13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रूट 13 की अगर वैल्यू निकालो, लेट मी फाइंड आउट एंड सॉल्व दिस फॉर यू। तो रूट 13 होता है 3 पॉइंट, अच्छा तुम्हें ये भी बोलेंगे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या ऐसा कुछ, तो 3.606 होता है। रूट 13 की वैल्यू कितनी होती है,
3.606. Let me show you further. So root 13 is equal to 3.606. करेक्ट. अब एक बात याद रखो कि अगर मैं रूट 13 की वैल्यू डालूं यहां पे, तो x की दो वैल्यूज मुझे मिल जाएगी. ये दो वैल्यू मुझे डेसिमल में मिलेगी, यही मुझे ढूंढनी है. तो चलो ढूंढते हैं. तो जिसको भी ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, सीबीएसई, आईसीएसई, आई डोंट केयर, अगर डेसिमल में ढूंढने के लिए बोलेंगे तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस रूट एंड सॉल्व इट फर्दर. तुम बोलोगे सर रूट की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो तुम्हें लॉग टेबल्स मिलते हैं एग्जाम में. वो लॉग टेबल की हेल्प से तुम रूट की वैल्यू निकाल सकते हो. अगर नहीं, सीबीएसई वालों को नहीं मिलते लॉग टेबल्स, तो वो लोग डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 13 की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x विल बी 3 प्लस 3.606 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 3.606 अपॉन 2. ठीक है. ओके. सो अगर इसमें फर्स्ट वाला हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 6.606 अपॉन 2. अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.303, ये आंसर आएगा. करेक्ट. और ये हो जाएगा 0.606 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.303. तो ये दो x की वैल्यू मिलेगी मुझे. ठीक है. तो जिसको पॉइंट में आगे निकालना है वो भी आगे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. प्लीज ये मत बोलना कि सर आपने तो पॉइंट वाला एक भी नहीं दिखाया, दैट्स वाई मैंने अभी दिखा दिया. तो प्लीज ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस, second sub question of this question number 3 yourself right now. Pause the video, try it, and confirm the answer. I will show you. Shall we check the answer now that you are done? Chalo. So discriminant 1 आता है. The answer is 1 and 2. x की दो वैल्यूज है 1 and 2. करेक्ट. अब आगे क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम. नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक याद रखना, ये जो है ना थोड़ी गलती है, इधर हो जाएगा 4√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स. एक्स रूट के अंदर नहीं है. ठीक है. तो ये एक याद रखना. नेचर ऑफ रूट्स कैसे ढूंढते हैं, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, या स्मॉलर देन 0 है. ये तुम्हें ढूंढना है. यू हैव टू फाइंड दिस. You have to find whether the discriminant is greater than 0, equal to 0, or smaller than 0. That's what you need to find. That is what nature of the roots are said, are called. ठीक है. चलो. So आगे कुछ नया है, let me just see. ठीक है. So I think exercise 4.4 के आगे जो भी नया पार्ट है, थोड़ा बहुत बचा है, I'm going to make a new video for that, and I'm going to share it with you, and उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम लोग जाएंगे. ठीक है. सो फॉर टुडे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. So I'm going to post this video now and give you the respective homework. So do this homework, and I'll see you in the next video. Bye bye.